enthusiastic learner of class 10 CBSE. Welcome again to a new video. Now we are doing Economics Chapter 2 Sectors of Indian Economy. This is Part 2. Part 1 already has been uploaded. Please watch that, then start watching this one. Otherwise, you will never understand anything. So let's get started. Already yesterday, the topic, in the previous video, the topic which has been uploaded, that is what introductions, overview, sector of economic activity, primary, secondary, and tertiary, we have completed. Today we will discuss economic interdependent and comparing of three sectors. Right? Let's get started. These all the things we have discussed yesterday. Today we are going to discuss what economic interdependent. अभी इसमें आने से पहले हम अच्छे से समझेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में कोई चीज बनती है तो उसको इंडस्ट्री में तो आना ही पड़ेगा। आप समझो कि गन्ना, शुगर कैन जो एक फार्मर उगाता है वो शक्कर कहाँ बनेगा? जब तक वो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आएगा तब तक वो क्या नहीं बनेगा, उसका कोई यूज ही नहीं है, शक्कर तो बन ही नहीं सकता। इन दैट केस वहां से यहां तक पहुंचने के लिए बीच में जो सर्विसेज होती है उसको वहां से लेकर सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। आप समझना, सेकेंडरी सेक्टर के अलावा प्राइमरी सेक्टर का कोई वजूद नहीं है। प्राइमरी सेक्टर के अलावा सर्विस सेक्टर के अलावा ये दोनों का कोई वजूद नहीं है। इन दैट केस वी कैन से दैट ऑल द थ्री सेक्टर्स आर interdependent on each other. So let's see that there are various linkages between sector. For instance, trade and transport establish a link between the producer and the consumers. Another example of this, chemical fertilizers which are produced in the secondary sector but consumed in the primary sector. अब primary sector का मैंने example आपको दिया गन्ना से secondary में भी fertilizer बनती है, वो consume किसके द्वारा होता है? primary sector के द्वारा होता है। और agriculture has developed in last few years. It has increased the purchasing power of the farmers, which in turn has promoted activity of the secondary and tertiary sector. Hence, economic activity are highly interdependent on each other. अब यार समझना, जो पहले हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो क्या था? वो प्रिमिटिव फार्मिंग करते थे, मतलब वो नेचुरल मेथड्स यूज करते थे। मगर धीरे धीरे हमारे जो फार्मर है वो क्या डेवलप हो गए, अभी ट्रैक्टर वैक्टर सब कुछ यूज करने लगे हैं। मतलब यहाँ सर्विस और सेकेंडरी सेक्टर का यूज इनको पड़ गई है। तो इन दैट केस क्या, ये जो तीनों सेक्टर है दे आर द इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आपको एक बार रीड करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ड्रिंक दैट कंटेन वाटर, शुगर एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। द कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर इज डिपेंडेंट ऑन द फार्मर फॉर शुगर। शुगर के लिए कोल्ड ड्रिंक को किसके ऊपर डिपेंड करना है? फार्मर के ऊपर। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्टर्स। ये दोनों किसके ऊपर है? डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। शुगर कैन रीच द शुगर मिल, देन द शुगर रीच टू द कोल्ड ड्रिंक प्लांट। अ पर्सन और सिस्टम a person or system of persons is required to maintain and monitor all this movement of goods from farm to factory to shop in different locations. समझ रहे हो ना? The farmers also need to fertilizers and seed which are processed in some other factories and need to be delivered to his doorstep by some means of transport. At every step, these activities need to be support of banking systems. So, in a note shall describe how interrelated all the sector of an economy are. अभी समझो कैसे ये इंटरडिपेंडेंट है। अभी किसी के प्राइमरी से सेकेंडरी आता है तो बीच में टर्शियरी सेक्टर का बहुत जरूरी होता है, इसके बिना ये दोनों कोई काम के नहीं है। बात समझ रहे हो? अभी आगे चलते हैं। कंपेयरिंग ऑफ थ्री सेक्टर्स। एज द economic activity are diversified and include various sections of human resources and raw materials, it becomes necessary to have an account of such activities to compare the sectoral growth rate and productivity, as well as sectoral analysis of their performance. मतलब each and every sector कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उनका ग्रोथ रेट क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो एक्टिविटीज चल रहा है डाइवर्सिफाइड है और वेरिएशन और ह्यूमन रिसोर्सेज रॉ मटेरियल्स आर व्हाट
काम कर रहे हैं, तो वो सब जानना बहुत जरूरी है कि ये अपने आप में कितने डेवलपमेंट है। अभी मान के चलो एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड है नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट पता करना है, तो वो सेक्टर की डेवलपमेंट हमको पहले पता करना पड़ेगा। It becomes confusing and complicated to count of total production as a single raw material may be used as several layer in the economy। ये कैसे होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ, आप समझो। जैसे कि एक चीज आया शुगर कैन प्रोडक्शन हुआ, उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ वो कैसे पता चलेगा? उसके बाद देखो इसमें मान के चलो कि टैक्स पे हुआ, इसके बाद ये किसके पास आया? फैक्ट्री के पास आया, मतलब सर्विस के द्वारा फैक्ट्री के पास आया। जो सर्विस बीच में प्रोवाइड हो रहा है वो भी टैक्स पे करेगा, क्योंकि वो सर्विस आपको दिया। इसके बाद इंडस्ट्री में आया, इंडस्ट्री में ये आपको टैक्स पे करेगा। फिर कस्टमर के पास आता है, कस्टमर टैक्स पे करता है। मतलब बहुत सारे जगह में ये सेवरल लेयर में क्या होता है, डिफिकल्ट हो रहा है काउंट करना कि हर जगह टैक्स होना है। मतलब एक ही छोटी वही चीज, 1 kg गन्ने से जो शुगर निकलना है, बार बार उसमें टैक्सेस काउंट होते जाएंगे। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमी सजेस्ट टू टेक फाइनल गुड्स और the goods which are to be directly consumed by consumer not meant of further processing as final service। मतलब फाइनल गुड्स के ऊपर ही, मतलब गन्ना से जब शुगर निकलेगा, वो शुगर जब आदमी कंज्यूम करेगा उसको तब हम फाइनल गुड्स मानेंगे। आप समझो, जब फाइनल कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद वो प्रोसेस में नहीं आएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं आएगा, तब उसको हम फाइनल गुड मानेंगे। मानो शुगर जो आता है वो शुगर फाइनल कंजप्शन भी होता है, और स्वीट दुकान वाला, मिठाई दुकान वाला मिठाई बनाने के लिए भी खरीदता है। मतलब ये मिठाई बनाने के लिए जो खरीदा जाता है वो फिर वैल्यू एडेड होती है, और जो आदमी कंज्यूम कर लेता है हम उसको फाइनल गुड्स बोलेंगे। The performance of each sector is determined by the counting only the value of final goods and service produced by the respective sector। कोई भी सेक्टर हो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जो फाइनली कंज्यूम होता है। फाइनल गुड्स हम किसको बोलेंगे? जो फाइनली कस्टमर कंज्यूम कर लेता है, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है, उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। उसको यहाँ पे बोला गया क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एडवांटेज ऑफ काउंटिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? एडवांटेज ऑफ काउंटिंग ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ओनली इज दैट these already include in the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods। अभी समझो, जो फर्स्ट प्रोसेस में शुगर कैन बना, शुगर कैन में सपोज 10 रुपए में बेचा गया, तो बीच में क्या हुआ? जो सर्विस सेक्टर आई वो इसको 12 रुपए में दिया, इंडस्ट्री ने 2 रुपए फिर जोड़ दिया, अपना काम 14 रुपए में दिया। उसके बाद क्या हुआ? ये जो 14 रुपए में आप लाए, जो दुकानदार के पास, रिटेलर के पास, रिटेलर इसको 15 रुपए में बेचा, तो 15 रुपए में वो आपके पास आया। अभी ये समझो बीच में जितने भी वैल्यू इसमें ऐड हुए हैं वो फाइनली इसमें ऐड हुआ कि नहीं हुआ? और इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है? फाइनली एक टैक्स लगा देती है। कितना? फिक्स्ड। अब मान लो 5% का टैक्स लगता है, तो 15 रुपए का जो 5% होता है वो टैक्स गवर्नमेंट ले जाती है। अभी समझो यहाँ डबल काउंटिंग हुआ क्या? हर जगह जो वैल्यू ऐड हुई है वो फाइनल यहाँ पे काउंट की जाती है। The value of biscuit include the value of flour and value of wheat। उसके बाद all the goods and services are turned into the monetary value according to their usability and counted for the calculation of total income। In using the value of final goods and service, we avoid repeated counting of processed goods। अभी यहाँ पे देखो डबल काउंटिंग वाला टेंशन है ही नहीं, फाइनल गुड्स में यहाँ पे काउंट हो जाता है। समझ रहे हो ना? उसके बाद आपका होता है जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट। ये जीडीपी क्या है? ऑल द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच प्रोड्यूस्ड इन द country in a particular financial year, that is called GDP, gross domestic product। जो मैं आपको बोला लास्ट में 15 रुपए में जो आया, जो वैल्यू उसका हो रहा है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। मतलब द वैल्यू ऑफ फाइनेंस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइडिंग द टोटल प्रोडक्शंस ऑफ द सेक्टर for that year। The sum of the value of productions all these three sectors in a particular year is called as gross domestic product। मैं जो आपको डेफिनेशन बता रहा हूं उसको नोट कर देना, शॉर्ट है, इजी टू अंडरस्टूड है। वो क्या है? The final value of all the goods and services which produced in a country in a given year या in a financial year, that is known as gross domestic product। राइट इसके बाद जो आपका आता है वो क्या है? हाउ डू वी कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये अच्छे से समझना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वही चीज यहाँ पे रिपीटेड होगी। जीडीपी इंडिकेट्स द साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। मतलब कंट्री जो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारा कंट्री अभी
फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है वर्ल्ड में, तो ये कैसे बनेगा, इसका जीडीपी कितना आ रहा है, मतलब आप समझो जीडीपी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक कंट्री में जीडीपी का क्या है, जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब समझो पहले हमारा जीडीपी 10 रुपए था, वो आज 20 रुपए है, इसका मतलब क्या है, जितने भी हमारे कंट्री में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो हमारा जीडीपी कहलाता है, यस और नॉट। तो इससे पहले हमारे कंट्री में 10 रुपए का जीडीपी है, उसके हिसाब से गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी, मगर अभी ये 20 हो गया, मतलब क्या, हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज 10 रुपए जीडीपी बढ़ाने के लिए जितने एम्प्लॉयर लगते थे या जितने एम्प्लॉयज लगते थे या जितना घंटे का काम कर रहे थे, डेफिनेटली उससे ज्यादा लोग यहाँ काम कर रहे होंगे या ज्यादा पैसा वो कमा रहे होंगे, तो इसीलिए तो यहाँ जीडीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है। इसके चलते हम बोलते हैं ये जो जीडीपी का साइज है ये इंडिकेट करता है कि वो कंट्री कितना बड़ा है या कितना इकोनॉमिकली prosperous है, right? It is the market value of final goods and service produced by all the sectors within the domestic territory or of a country. There may be both resident or the non-resident producers. मतलब आप समझो कंट्री के अंदर, जैसे हमारे कंट्री का कोई है, जैसे मान लो मारुति सुजुकी तो अभी एक ही है कि दोनों कोलैबोरेट होकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, हीरो होंडा का ले लेते हैं। हीरो हमारे कंट्री का है जिसको हम रेसिडेंट प्रोड्यूसर बोलेंगे, और होंडा जो है नॉन रेसिडेंट प्रोड्यूसर है। दोनों की जो प्रोडक्शन हो रही है वो यहाँ पे काउंट होती है। The mammoth task of estimating the GDP in India is undertaken by Central Statistic Office, और हम ये कौन काउंट करता है, Central Statistic Office working under the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India। बात समझिए कौन कैलकुलेट करता है। This department collect information related to the total value of goods and services with a price to estimate the GDP. National Sample Survey Organization. It is an organization under the Ministry of Statistics, Planning and Program Implementation, Government of India, that regularly conduct a survey on employment and unemployment 5 yearly, मतलब 5 साल में एक बार, and figure out primary data for further use. Other sources like Census of India also provide employment data. ये खाली आपको एक जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने दे रखा है, राइट। इसके साथ ही आपका आज का वीडियो एंड होता है। Thank you very much for watching. Stay tuned.